Now we will derive a very important equation which is known as Bernoulli's theorem. This is equation for steady motion of an ideal fluid along a streamline. Then we will solve a numerical related to Bernoulli's theorem. So first of all, we will discuss the assumptions. It assumes viscous effects are negligible. इसका मतलब है कि fluid जो है आपका ideal fluid है. Then it assumes the flow is steady. ये हम डिस्कस कर चुके हैं फ्लो टाइप में कि व्हाट इज स्टेडी फ्लो. द इक्वेशन अप्लाइज अलोंग अ स्ट्रीमलाइन एंड इट assumes the fluid to be incompressible. It assumes no energy is added to or removed from the fluid along the streamline. तो बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करने से पहले हमें इसका जो है ऑयलर्स इक्वेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा. ऑयलर्स इक्वेशन इज वैलिड बोथ फॉर कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल. देन उसको जब हम सिर्फ इनकंप्रेसिबल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन जो हमारी चेंज होके बर्नौलीज थ्योरम बन जाएगी. So now let's start with Euler's equation of motion along a streamline. ये फिगर आपके सामने है. This figure shows a short section of a stream tube surrounding the streamline and having a cross-sectional area small enough for the velocity to be considered constant over the cross-section. Steady flow हमने consider करना है. तो ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है इसको अभी हम डिस्कस करते हैं. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि from the consideration of rate of change of momentum from point to point along a streamline and the forces acting due to the effects of surrounding pressures and changes of elevation, it is possible to derive a relationship between velocity, pressure, elevation and density along a streamline. ये सारी terms जो हैं velocity, pressure, elevation और density ये वाली terms अभी आपकी जो हम equation derive कर रहे हैं Euler's equation उसमें आएंगी. तो इनके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप होगा. फिगर को पहले डिस्कस कर लेते हैं. फिगर आपके सामने है. इसमें दो सेक्शंस हमने ले लिए हैं. एक सेक्शन ए बी है एंड अदर इज सेक्शन सी डी. सो ए बी एंड सी डी आर टू क्रॉस सेक्शंस विच आर सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस डेल्टा एस. So at section AB, the area is A, velocity is V, pressure is P and elevation is Z. And at section CD, these are the terms written here. Area is A plus delta A, velocity is V plus delta V, and pressure is P plus delta P, and elevation is Z plus delta Z. There will be surrounding fluid surrounding this stream tube or streamline. The surrounding fluid will exert a pressure P side on the sides of the element. ये जो शो हो रहा है, ये जो एरोस शो हो रहे हैं, ये सराउंडिंग फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं जिसको हमने P साइड से प्रेजेंट कर दिया. एंड इफ द फ्लूइड इज assumed to be inviscid, there will be no shear stresses on the sides of the stream tube and P side will act normally. अगर तो ये फ्लूइड को हमने इनविस्किड ना लिया होता तो यहाँ पे बाउंड्री के अलोंग दोनों तरफ shear stresses भी होते हैं जिसको हमें कंसिडर करना था. बट हमारी assumption है कि fluid is ideal, so there are no shear stresses along its boundary. And another force is this weight component, weight of the element mg that will act vertically downward at an angle theta to the center line. So now let's start its derivation. Mass per unit time flowing is rho AB. Rate of increase of momentum from this section AB to CD is rho AB into V plus delta V minus V equals rho AB delta V. As all of you are familiar with that, momentum is mv and rate of increase की बात हो रही है जब यानी कि जो change आ रहा है momentum में तो definitely mass में तो change नहीं है, only change is in velocity. इसलिए हमने ये जो mass की टर्म्स थी रो ए वी इसी तरीके से है और जो चेंज इन वेलोसिटी है वो यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है. वेलोसिटी v से चेंज होके v प्लस डेल्टा वी हो रही है जो हमने यहाँ पे लिख दी है. और ये जो टर्म है mass per unit time flowing ये किस तरीके से आया है. आप लोगों को जैसे पता है कि डेंसिटी इक्वल्स
mass per unit volume, एंड जब हम बात कर रहे हैं mass की तो यहाँ से हम mass equals rho into volume, और यहाँ पे लिखा है mass per unit time, सो हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। सो वॉल्यूम ओवर टाइम आपको पता है कि वो डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज आपको ये भी पता है दिस Q इक्वल्स टू AV। So this is mass per unit time, which is equals to rho AV. Now the forces acting to produce this increase of momentum in the direction of motion are, forces को हम डिस्कस कर लेते हैं। forces आपको नज़र आ रही हैं, एक ये force है, देन ये एक सेकेंड फोर्स यहाँ पे जो CD पे एक्ट करेगी, देन P साइड की वजह से फोर्स होगी, एंड देन इस वेट कंपोनेंट की वजह से फोर्स होगी। फोर्स ड्यू टू P इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज P into A, then force due to P plus delta P opposing motion is P plus delta P into A plus delta A, then force due to P side producing a component in the direction of motion is P side into delta A, then force due to weight producing a component opposing motion is mg cos theta। ये वर्टिकल वेट था, इसका हमने वो कंपोनेंट लेना है जो फ्लो की डायरेक्शन में है। देन रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं इसको हम लिख लेते हैं PA माइनस, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस दिस फोर्स, प्लस P साइड इनटू डेल्टा A, एंड देन अगेन माइनस mg cos theta। The value of P side will vary from P at AB to P plus delta P at CD and can be taken as P plus K delta P, where K is a fraction. And जो weight of element mg है उसको हम लिख सकते हैं as rho g into volume, और volume जो है होगा एरिया इंटू लेंथ। लेंथ आपके पास फिगर में जैसे नज़र आ रही है, इसकी लेंथ है डेल्टा एस, और एरिया आपने एवरेज ले लिया है, यहाँ पे ए था और यहाँ पे ए प्लस डेल्टा ए, सो इसका एवरेज है ए प्लस हाफ डेल्टा ए। एंड कॉस थीटा आपके फिगर से देख सकते हैं, इट इज इक्वल टू डेल्टा जी ओवर डेल्टा एस। सो नाउ रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अपॉन सॉल्विंग वी गेट दिस इक्वेशन। यहाँ पे हम जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, जो स्मॉल डिफरेंशियल वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो मज़ीद स्मॉल वैल्यूज़ देती हैं, इसलिए उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो निगलेक्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़, रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज माइनस ए डेल्टा पी माइनस रो जी ए डेल्टा जी। Applying Newton's second law from equation 5.18 and 5.19, ये आपकी एक इक्वेशन है एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी ये बन गई है। सम कर देंगे हम फोर्सेस को, सो रो ए बी डेल्टा वी इक्वल्स माइनस ए डेल्टा पी माइनस रो जी ए डेल्टा जी। जब आप इस इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें रो ए डेल्टा एस से, तो आप देखेंगे कि आपकी इक्वेशन जो है वो ऐसे आ जाएगी 1 ओवर पी डेल्टा पी ओवर डेल्टा एस प्लस वी डेल्टा वी ओवर डेल्टा एस प्लस जी डेल्टा जी ओवर डेल्टा एस इक्वल 0। और अगर हम इसको डी डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 ओवर रो डी पी ओवर डी एस प्लस वी डी वी ओवर डी एस प्लस जी डी जी ओवर डी एस इक्वल 0। सो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन इज नोन एज ऑयलर्स इक्वेशन, giving in differential form the relationship between pressure P, velocity V, density rho and elevation Z along a streamline for steady flow। जो हमारी स्टार्ट में assumptions थी, flow steady था, in viscid था, उसके लिए हमने, और along a streamline था, उसके लिए हमने ऑयलर्स इक्वेशन डेवलप कर ली है जो आपके डिफरेंट पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप आपको प्रोवाइड कर रही है। So this equation cannot be integrated until the relationship between density and pressure is known। तो compressible flow के लिए तो इजीली इंटीग्रेट नहीं हो सकती हैं, और हमारा फोकस इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए है, इसीलिए हम उसी को आगे लेके चलेंगे जो हमारी assumption भी थी बर्नौली की, that for an incompressible fluid जहाँ पे density constant होती है, so इस equation को हम integrate करेंगे then with respect to S, and this equation
ये जो इक्वेशन थी इसको विद रिस्पेक्ट टू एस हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. दिस गिव्स p over rho plus v square over 2g v square over 2 plus gz equals constant. This term represents energy per unit mass. Dividing this equation by g, we get p over rho g plus v square over 2g plus z equals constant equals h. ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, these terms represents energy per unit weight. जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर यूनिट वेट, पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम. सो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वेट. और ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसमें h जो है वो टोटल हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस इक्वेशन का नाम है बर्नौलीज इक्वेशन. This states a relationship between pressure, velocity and elevation for steady flow of a frictionless fluid of constant density. Its an alternative form is P plus half rho v square plus rho gz equals constant. Here all the terms represent energy per unit volume. So these equations apply to a single streamline. If we want to use this equation along the 2 points in a streamline, then the equation becomes P1 over rho g plus V1 square over 2g plus Z1 equals P2 over rho g plus V2 square over 2g plus Z2. So this is Bernoulli's theorem for ideal fluid. Now we will solve a related numerical. Here is a statement. Glycerine in a processing plant flows in a pipe at a rate of 700 liters per second. At a point where the pipe diameter is 600 millimeter, the pressure is 300 kilopascal. Find the pressure at a second point where pipe diameter is 300 millimeter. If the second point is 1 meter lower than the first point, neglect the head loss. सबसे पहले आप ये नोट करें, यहाँ पे मेंशन है निगलेक्ट द हेड लॉस. दिस मीन्स दैट आपने इसको कंसिडर करना है कि फ्लूइड जो है वो आइडियल है. इन रियलिटी तो फ्लूइड आइडियल नहीं है, ये रियल फ्लूइड है, लेकिन अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. इसको हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि ये आइडियल है क्योंकि हम यहाँ पे हेड लॉसेस को निगलेक्ट कर रहे हैं. देन हम इसी को जब आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, देन हम इस इक्वेशन को रियल फ्लूइड के ऊपर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे. तो आपके पास जो डाटा है वो क्या है कि आपको एक लिक्विड दे दिया है ग्लिसरीन, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.26 है. वो इस पाइप के अंदर फ्लो कर रही है. किस रेट से फ्लो कर रही है? रेट आपको गिवन है 700 लीटर्स पर सेकेंड और आपको डिफरेंट डायामीटर्स बता दिए हैं. डाया वेरी कर रहा है. स्टार्ट में 600 मिलीमीटर है, देन 300 मिलीमीटर पे चेंज हो रहा है. जहाँ पे डाया 600 है वहाँ पे इसका प्रेशर 300 किलो पास्कल है. आपने सेकंड पॉइंट पे जहाँ डाया चेंज हो रहा है 300 मिलीमीटर, वहाँ पे आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है. और एक और चीज़ इसमें गिवन है कि जो 2 पॉइंट्स है 1 और 2, इनमें एलिवेशन का डिफरेंस जो है वो 1 मीटर है. 0.2 जो है वो 0.1 से 1 मीटर नीचे एग्जिस्ट कर रहा है. तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पाइप के अंदर वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है. Q इक्वल्स टू AV का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. Q हमें गिवन है 700 लीटर्स पर सेकेंड. इसको पहले हम जो हमारे SI यूनिट्स हैं क्यूमिक्स उसमें कन्वर्ट कर लेंगे. 1 मीटर क्यूब इक्वल्स 1000 लीटर्स. सो इसको जब हम चेंज कर लेंगे 700 लीटर पर सेकेंड को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.7 क्यूमिक्स डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी. एरिया आप कैलकुलेट कर लेंगे. दोनों एंड्स पे एरिया आपका डिफरेंट है. रिस्पेक्टिव डाया यूज़ करके π/4d² की हेल्प से आप दोनों पॉइंट्स पे एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. देन Q इक्वल्स टू AV का फॉर्मूला लगा के आप 0.1 और 0.2 दोनों पॉइंट्स के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे. सो हेयर इज द सोल्यूशन. आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है Q इक्वल्स टू AV का फॉर्मूला यूज़ करके. सो Q डिवाइड बाई A इज A1 इज V1 और इसी तरीके से Q डिवाइड बाई A2 जब आप करेंगे तो आपके पास V2 आ जाएगा. सो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं 2.48 मीटर पर सेकेंड एंड 9.9 मीटर पर सेकेंड. नाउ अब आपने इक्वेशन यूज़ करनी है, बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ करनी है. P ओवर गैमा प्लस Z प्लस V स्क्वायर ओवर 2G
These are for point 1 equals P2 over gamma plus Z plus V2 square over 2G. तो जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि अगर आप रेफरेंस पॉइंट से नीचे की तरफ जाएंगे तो जो आपकी एलिवेशन होगी उसको आप नेगेटिव वैल्यूज़ में लेंगे, और अगर आप रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एलिवेशन को आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। इसमें से किसी भी एक पॉइंट को आप रेफरेंस कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट 1 को रेफरेंस लेंगे तो इसकी एलिवेशन 0 होगी और पॉइंट 2 की एलिवेशन -1 होगी। अगर आप पॉइंट 2 को रेफरेंस कंसिडर करते हैं तो इसकी एलिवेशन 0 होगी और पॉइंट 1 की एलिवेशन +1 होगी। अभी जो कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं उसमें मैंने पॉइंट 1 को रेफरेंस लिया है, आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। सो पॉइंट 1 को अगर रेफरेंस ले रही हूँ मैं तो यहाँ पे एलिवेशन इसकी 0 है। P1 ओवर गैमा प्रेशर आपको गिवन है, गैमा आप कैलकुलेट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी विद स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। सो P1 ओवर गैमा आपके पास आ गया यहाँ पे, प्लस Z1 0 है, प्लस V1 स्क्वायर ओवर 2G इक्वल्स P2 ओवर गैमा, P2 अननोन है, प्लस Z2, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू -1 है, plus V2 square over 2G. So all the values are unknown, only there is one unknown which is P2. So we can easily compute that P2 equals 254 kilopascals. So there are some more questions which you can easily solve by applying Bernoulli's theorem. So in next lecture, we will apply the Bernoulli theorem in real world. We will modify this theorem for real fluids, and we will discuss different equipments which are designed on the basis of Bernoulli's theorem.